پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گنبدِ خضرا کی آغوشِ سکون کے واسطے، گنبدِ خضرا کی آغوشِ سکون کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ آج بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ 6 ٹیمیں آگے پہنچ گئی ہیں اور آج ہمیں 7ویں ٹیم کی تلاش ہے۔ آج دیکھنا ہے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ 2 شہروں سے اسلامی بھائی تیاری کر کے بڑے جس کو کہیں کہ اپنی ذہانت کا امتحان دینے کے لیے لائیو آ جاتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں۔ ایک کشمیر کے پہاڑوں کے قریب سے آنے والی نکیال سے ٹیم آئی ہے اور دوسری اولیاء اکرام کے شہر ملتان سے مدینۃ الاولیاء سے ٹیم آئی ہے۔ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں ٹیموں کو بلائیں، مقابلے کا آغاز کریں، وقت ہوا ہے ہمارے ناظرین کا۔ اپلیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، اگر اپنے موبائل میں آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو کر لیں۔ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں آپ جائیے اور آپ کے لیے آن لائن سوال وہاں موجود ہے۔ سوال کیا ہے اس اپلیکیشن پر جا کر دیکھیے۔ ہر طرح کے اسمارٹ فون میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ جلدی جلدی 4 آپشنز ہوں گے، ان چاروں میں سے کسی ایک پر کلک کر دیجئے جو جواب آپ کو درست لگتا ہے اور اپنی آئی ڈی نوٹ کر لیجئے گا۔ سلسلے کے اختتام پر اعلان کریں گے کہ کس اسلامی بھائی نے سب سے پہلے جواب دیا اور اس کے علاوہ 4 خوش نصیب کون ہیں جن کو کمپیوٹر نے سلیکٹ کیا اور آپ کو ان کے آئی ڈی نمبرز بتائے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کرتا ہوں اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد۔ مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا، جو سلسلہ پچھلے سلسلے میں، اس کا جواب بھی دیں گے اور اس کی بھی انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے۔ نکیال والے بھی آ جائیں اور ماشاءاللہ ملتان والے بھی تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ جی عاطف بھائی، ہم نے سوال کیا تھا ناظرین سے، اس کا سوال اور اس کا جواب عطا فرما دیں۔ حمزہ، کل جو گزشتہ سلسلے میں سوال کیا گیا تھا، سوال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ تو درست جواب ہے ابو حفص۔ فیضان نماز کے اندر اس کا جواب موجود تھا۔ تو جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام عرض کرتا ہوں۔ محمد ارسلان اتاری گوجر خان، ام الخیر ڈیرہ غازی خان بنت لیاقت ٹبہ سلطان پور، محمد جہانگیر اتاری ملتان بنت محمد شریف اتاریہ پنو عاقل، محمد نوید رضا اتاری قبولہ شریف، محمد عمر رحیم یار خان اسامہ محبوب کراچی بنت قاسم خانیوال، بلال اتاری لاہور، قربان رضا قادری سہرائے تھر پارکر، ام عدیل پاک پتن شریف، ام فاطمہ اتاریہ، محمد راشد حنیف جنگ بنت شوکت سیالکوٹ، ادریس میمن کراچی بنت اعجاز اتاریہ حیدرآباد، ام فضا اتاریہ کوئٹہ، حق نواز اتاری میاں والی، محسن علی اتاری عرب شریف۔ اب ان خوش نصیبوں کے درمیان انشاءاللہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں کس کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے۔ جی آج جن کا نام نکلا ہے محمد جہانگیر اتاری ملتان، انشاءاللہ ان کا تحفہ ان تک پہنچا دیا جائے۔ ویسے یہ تیسری بار ہوا ہے کہ جہاں کی ٹیم آتی ہے اسی علاقے کی قرآن اندازی میں نام نکل آتا ہے۔ آج ملتان والے آئے ہیں تو ملتان تحفہ جا رہا ہے۔ چلیں جناب، آپ اپنا تحفہ منگوا لیجئے گا، اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیے گا تو ہماری ٹیم آپ تک بھیجے گی۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کریں گے۔ میری دائیں طرف نکیال کے اسلامی بھائی ہیں۔ شاید بہت سارے ناظرین نے لفظ نکیال شہر کا نام بھی پہلی بار سنا ہوگا۔ میں بھی جب ایک بار گیا تو کمال کی بات یہ کہ وہاں دعوت اسلامی کا بہت خوبصورت مدنی مرکز بنا ہوا ہے۔ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایسی پہاڑ کے اوپر ایک ایسا
से कोने पर इतना सेहत अफजा, इतना खूबसूरत मकाम कि बंदे का जी चाहे कि वहाँ जाकर इल्म दीन भी हासिल करे और कुछ वक्त गुजारे। मेरी हाज़िरी हुई है एक बार और माशाल्लाह हमारी टीम भी वहाँ पर गई, वो भी मनाजिर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले तीनों इस्लामी भाइयों का तारुफ लेते हैं, बारी बारी अपना नाम बताएंगे और क्या करते हैं वो भी बताएंगे। जी, मोहम्मद इरफान अयूब, मैं स्कूल टीचर हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोटली में। माशाल्लाह। पढ़ाते हैं आप, क्या पढ़ाते हैं? सर, मैथ और साइंस। मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और स्कूल टीचर हैं, तो कैसे ज़हनी आजमाइश में आने का ज़हन कैसे बन गया? एक कज़न है मेरे, उनका तल्लुक दावत इस्लामी से, हमारे एरिया के निगरान है। ठीक है। तो वक्तन फ़वक्तन जो भी मामलात होते हैं मुझे इसमें इन्वॉल्व रखते हैं। तो बस उनकी बरकत से ऑडिशन में आए थे तो सेलेक्ट हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। स्कूल टीचर साहब आए, मरहबा कहते हैं आपको, दावत इस्लामी आपकी है, मरहबा। अगले भाई नाम बताएंगे। मोहम्मद मेहरान अत्तारी, जामियातुल मदीना बन खुरमा मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जामियातुल मदीना दर्जा राबिया के तालिब। चौथे दर्जे में हैं, कश्मीर के जामियातुल मदीना से। जी, तीसरे भाई। मेरा नाम मोहम्मद तौसीक अत्तारी, मैं जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना गरबी निकाल में दर्जा सानिया में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। इन तीनों इस्लामी भाइयों की यहाँ आमद हुई, सेलेक्ट कैसे हुए? आइए चलते हैं कश्मीर की वादियों में और देखते हैं वहाँ जो ऑडिशन हुआ उसमें क्या हुआ। वो मुनकशिफ जो आया दायरा इल्म में, हुआ वो मुनकशिफ जो आया दायरा इल्म में, मिटे अंधेरे ज़न्नो शक के शागरा इल्म में, मिटे अंधेरे ज़न्नो शक के शागरा इल्म में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, बहुत में इल्म में इजाफा हो रहा है। तू खर्च कर पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारे सिलसिले का पहला सेगमेंट ये मुकम्मल हो चुका। वज़ू के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरह कद्र पढ़ने की क्या फजीलत है? वज़ू के बाद सूरह कद्र पढ़ने की फजीलत आसमान की तरफ देखकर ये है कि उसकी नज़र कमज़ोर ना होगी। सवाल करके मोहम्मद मेहरान अत्तारी, कहा गया इसे, सवाल करके चाबी इल्म की कहा मोहम्मद मज़हर अत्तारी, गया, सवाल कर सवाल आधा इल्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नकियाल के इस्लामी भाइयों की ऑडिशन कैसे हुई आपने सुना। अब चलते हैं मुल्तान वालों की तरफ, बारी बारी इनका नाम पूछेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। जी, मोहम्मद तैयब बिन अब्दुल हफीज़। क्या करते हैं तैयब? एमकॉम कर रहा हूँ। अच्छा, मुल्तान में? जी। अच्छा, अगले भाई। साद हारिस, और मैं जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना मुल्तान में पढ़ रहा हूँ, दर्जे दौलतुल हदीस शरीफ, और इसके अलावा ग्रेजुएशन बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और दौरे हदीस के तालिब इल्म हैं। माशाल्लाह। अगले भाई। मोहम्मद इरफान रज़ा कबीरी, माशाल्लाह। ये जामियातुल मदीना मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना में मुदर्रिस हूँ और एमफिल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, रिजियो से जो है ना बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी। एमफिल भी कर रहे हैं, जामियातुल मदीना के उस्ताद साहब भी हैं। मुल्तान वालों ने एक बड़ी वैरायटी टीम भेजी है जिसमें दुनियावी तौर पे भी तालीम याफ्ता लोग हैं और माशाल्लाह इल्म दीन भी हासिल करने वाले हैं। मुकाबला नकियाल वालों से है। मुल्तान की टीम सेलेक्ट हुई, कैसे हुई, आइए आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। जो इल्म से हो मुत्तसिफ, बुलंदियों से जा मिले, हाँ कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ज़हनी आजमाइश
आजमाइश सीजन 11 और आज ऑडिशन का सिलसिला है मुल्तान में। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज की शब मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए तो कौन से नबी को कब्र में नमाज पढ़ते देखा? हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना वाले नबी पाक की जन्नती सवारी क्या थी जब नबी पाक आसमानों की बुराक थी? प्यारे आका अलैहिस्सलाम किस मकाम पर गए कि जहां से आगे जिब्रील अमीन साथ ना गए? सिदरतुल मुंतहा। खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। जनाब दोनों तरफ की टीमें सेलेक्ट हो चुकी हैं और यहाँ पहुँच चुकी हैं। आइए अब चलते हैं कि इस बार जो ये मुकाबला होगा उसके सेगमेंट्स क्या हैं वो भी बताने हैं आपको, लेकिन कल मुकाबला हुआ कौन सी टीम आगे रही उसकी भी कुछ झलकियां दिखाते हैं आपको। एक बार फिर सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 11 बराह रास्त लेकर हाजिर है। आज हमारा छठा सिलसिला है, फिर दो टीमों के दरमियान मुकाबला है और देखना है आज कौन सी टीम आगे जाती है। सहाबा मुहद्दिसीन और फुकहा के शेखैन कौन है? सहाबा के शेखैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और फुकहा के जो शेखैन हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ हैं। और मुहद्दिसीन के शेखैन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। क्या बात, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तू जिसके वास्ते छोड़ आया तैबा सा महबूब, बता तू उस सितम आरा ने क्या निहाल किया, बता तू उस सितम आरा ने क्या निहाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, यानी थोड़ी चीज़ ज़्यादा ख्वाहिशमंद। उस्ताद साहब ने इरशाद फरमाया कौन कौन चाय पिएगा, तो सब तलबा ने हाथ खड़ा किया, लेकिन उस्ताद साहब ने उस वक्त ये मिसाल इरशाद फरमाई थी कि एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार, कप चाय का था, मिसाल अनार की दी, लेकिन सही दी क्योंकि मुहावरा यही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर है भावलपुर के, 30 नंबर है खुजदार के। याद रहे जनूबी पंजाब की एक टीम रहीम यार खान पहले ही अगले राउंड में पहुंच गई है। क्या एक और टीम उन्हें ज्वाइन करेगी या बलूचिस्तान वाले कम बैक करेंगे? नमाज में भूले से कोई वाजिब छूट जाने पर सजदा सहव करते हैं। इस्तिकबाल किबला नमाज की शर्त नहीं है। गलत। हजरत दातागंज बख्श का मजार मुल्तान में है। गलत। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार दिल्ली हिंद में है। गलत। अमीरुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का लक़ब है। गलत। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं हबीबुल्लाह ने। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। सही। वुजू के लिए काबा शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठना सुन्नत है। गलत। कुरान पाक लौहे महफूज पर तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। गलत। हजरत खालिद बिन वलीद का लक़ब सैफुल्लाह है। सही। हमारे आका की विलादत सन 11 हिजरी में हुई। गलत। जवाब पांचों के 5 दुरुस्त दे दिए। हज़रत हलीमा सादिया नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिज़ाई वालिदा है। सही। बैत रिज़वान हिजरत से पहले हुई। सही। कुरान में 10 गज़वात का जिक्र है। गलत। कुरान की 8 सूरतों के नाम अंबिया के नाम पर हैं। गलत। तहवील किबला का वाक़या सन 2 हिजरी में पेश आया। गलत। जनाब आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, मगर ये गलतियां शायद आपको इतनी तकलीफ नहीं देंगी क्योंकि नंबर पहले ही ज्यादा थे। बताइए इनसे भी 2 गलतियां हुई हैं और अब मुकाबला भावलपुर के इस्लामी भाई जीत चुके हैं। दोनों टीमें आगे आएंगी। 6 नंबर के फर्क से भावलपुर वाले आगे रहे। खुजदार वालों ने कोशिश बड़ी की, दिल छोटा ना कीजिएगा, फिर मौका मिलेगा। जी नाजरीन, कल एक और जनूबी पंजाब की टीम यानी भावलपुर की टीम आगे बढ़ी है। ये आज फिर पंजाब से, जनूबी पंजाब से मुल्तान की टीम आई है। क्या ये टीम भी
हैट्रिक मुकम्मल करके अगले राउंड में जाएगी या आज नकियाल वाले आगे जाएंगे? जनाब, आज हमने अपने नाजरीन से जो एप्लीकेशन पर सवाल किया है, अगर अभी तक आपने जवाब नहीं दिया और पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो मैं दोहरा देता हूँ। सवाल यह है, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? जवाब है, 4 जवाब हैं। जवाब तो उसमें से आपको ढूंढना है। ऑप्शन 4 है, किरामन कातिबीन, मुनकर नकीर, हामिलीन या माहियीन। इन चारों में से आपने एक जवाब देना है और क्या जवाब सही है उस पर जल्दी से क्लिक कीजिए, क्या पता इस बार इनाम आप तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। इल्म नूर है, इश्क के बोल, ज़बानो बयान, तारुफ कुरान। तहरीर कीजिए, सफर है मगर अकेले। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, कश्मीर वालों से पहला सवाल, हदीस कुदसी और कुरान पाक में क्या फर्क है? याद रहे 25 सेकंड है जवाब देने के लिए। हदीस कुदसी और कुरान पाक में फ़र्क 2 तरह का है कि हदीस कुदसी जो है ये इल्हामी सूरत में भी हासिल हो सकती है और मनाबी सूरत में भी हासिल हो सकती है, जबकि कुरान पाक ये बेदारी में ही आएगा। और हदीस कुदसी और कुरान पाक में एक और फ़र्क ये भी है कि हदीस कुदसी जो है वो उसका मज़मून रब ताला के है और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और कुरान पाक जो है इसमें अल्फाज भी रब ताला के और मज़मून भी रब ताला का। बात है, क्या खूबसूरत बात है। शायद बहुत सारे नाजरीन को आज पहली बार मालूम होगा। मिरातुल मनाजी के हवाले से खूबसूरत बात है कि हदीस कुदसी और वही में यानी कुरान पाक में क्या फ़र्क है। हदीस कुदसी ख्वाब में भी हो सकती है, इल्हाम में भी हासिल हो सकती है, मगर कुरान जब नाजिल होता है वो बेदारी ही में आया। और इसी तरह कुरान में लफ्ज़ भी रब के हैं, मज़मून भी वहीं से आया, रब ही का है। हदीस कुदसी में मज़मून रब का है, अल्फाज नबी पाक के हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी मुल्तान वालों की है। सूरह यासीन की 25वीं आयत रोज़ाना पढ़ने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन की 25वीं आयत की तिलावत करेगा उसके लिए कब्र के सवालों के अंदर आसानी कर दी जाएगी। जनाब, ये हदीस पाक नहीं है, ये कॉल कह सकते हैं, ये सवाल का जवाब है, मगर ये हदीस पाक नहीं है। जो रोज़ाना सूरह यासीन की 25वीं आयत पढ़ेगा उसके सवालात कब्र में आसानी होगी। अब तो दिलचस्पी बढ़ गई है। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम वो 25वीं आयत अगर आपको पता है तो बता दें, वरना वो ढूंढ दें ताकि आज हम उसको सुन भी लें, मैं भी रिपीट कर दूंगा और नाजरीन भी इंशाल्लाह। तो जनाब, जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। याद रहे जो हदीस पाक है उसी को हदीस कहा जाए, और हदीस बयान करते वक्त भी ये कह दिया जाए कि ये हदीस पाक का मजमून है। बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज भी आगे पीछे हो जाते हैं। नखियाल के इस्लाम भाई से सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को क्या फरमाया करते कि लोग उन हवारियों को न पहचान सकें कि वो रोजेदार हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये अपने हवारियों को हुक्म दिया करते थे कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने दाढ़ी और सर के बाल को तेल लगा लिया करो, इससे ये होगा कि किसी को कोई मालूम नहीं हो सकेगा कि तुम रोज़ादार हो। फ्रेश नजर आए, बिल्कुल हशाश बशाश नजर आए, रोजा भी रखें और सामने वाले को पता ना चले कि रोजेदार हैं। यहाँ तो मामला उलट होता है जनाब। किसी भी तरह अपनी नेकी बताने की कोशिश होती है। अल्लाह वालों का ये अंदाज हुआ करता कि इबादत करते, रियाजत करते, मगर किसी को बताते भी नहीं थे। अल्लाह मुझे और आपको भी इखलास नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आजिज़ी इख्तियार करने और नेकियां छुपाने का क्या अंदाज हुआ करता था? आप रहमतुल्लाहि ताला ऐसा लिबास पहन कर निकलते, आपके अहले खाना और अहबाब के अलावा आपको कोई नहीं जानता था, और आप फरमाया करते कि नेकियों को भी इसी तरह छुपा कर रखना चाहिए। जैसे
जैसे बंदा अपने गुनाहों को छुपा कर रखता है। जी, आप ऐसा लिबास पहनते कि उनके अहबाब के सिवा, जानने वालों के सिवा कोई नहीं पहचान सकता था कि आप आलिम दीन हैं। बड़ा सादा लिबास। और फिर फरमाते मुखलिस वो है जो अपनी नेकियों को ऐसा छुपाए जैसा बुराइयों को छुपाता है। नाज़रीन सोचिए ना, अपनी बुराइयां तो कोई किसी को नहीं बताता, हो भी जाए तो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताते भी नहीं है, मगर नेकियां क्यों ढूंढ ढूंढ के बताने का जी चाहता है। अल्लाह इखलास की नेमत अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की 25वीं सूरह यासीन की 25वीं आयत की बात हुई थी, तो चलें वो आयत इंशाअल्लाह जो है वो हम पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारी आयत है कुरान पाक की, और सूरह यासीन की 25वीं आयत इंशाअल्लाह। मैंने सूरह यासीन तो खोल ली है और ये आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, यानी ये पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब के ईमान को सलामत रखे। वैसे पूरी सूरह यासीन पढ़नी चाहिए इंशाल्लाह। 10 कुरान पाक का सवाब भी लिखा है उसमें, तो कोई यासीन शरीफ पढ़ते रहा करें, और इंशाल्लाह ये भी आयत भी इंशाल्लाह इसकी फजीलत दोबारा बयान कर दें ताकि। जी, मैं दोबारा बयान कर देता हूँ। ये मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया था। मैं आयत भी पढ़ देता हूँ ताकि इसका शॉर्ट क्लिप बन जाए। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, ये कुरान पाक की सूरह यासीन की 25वीं आयत है। जो रोजाना सूरह यासीन की 25वीं आयत पढ़ेगा उसके सवालाते कब्र में आसानी होगी। सुभान अल्लाह। चलें इंशाल्लाह मैं भी नियत कर लेता हूँ और नाज़रीन भी नियत कर लें। सल्लु अलल हबीब। नकियाल वालों से सवाल, किन नमाजों में क़ियाम फर्ज है? फ़राइज़ नमाज में और वितर में और ईदैन में ये क़याम करना ये फ़र्ज़ है। और अगर कोई बिला उज़र सही बैठ कर ये नमाज़ें पढ़ेगा तो क्या होगा? अगर कोई बिला उज़र अगर कोई सही है बिला उज़र इस तरह कर रहा है तो उसका ये बैठना सही नहीं होगा, उसकी नमाज नहीं होगी। जनाब, फ़र्ज़, वितर और ईदैन और सुन्नत फ़जर आप भूल गए में क़याम फ़र्ज़ है कि बिला उज़रे सही बैठ कर ये नमाज़ें पढ़ेगा तो ना होंगी। 4 में से 3 चीज़ें इन्होंने ठीक बता दी हैं। क्या इन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे? जी जनाब, पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है? मस्जिद हदीस पाक का मफ़हूम है कि मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है। क्या बात है, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, क्या शौहर को बीवी की हर बात पर सब्र करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर को बीवी की हर बात पे सब्र नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वो गालम गलोच कर रही है, फिल्में ड्रामे गाने बजे इस तरह की, या फाशी और यानी में मुब्तला है, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। जी जनाब, अच्छे अंदाज से इस्लाह करनी चाहिए। गुनाहों की आदत है तो समझाना चाहिए। बेहयाई और बुरे कामों पर खामोश नहीं रहा जाता, इस्लाह करनी चाहिए मगर अच्छे अंदाज से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, औरत से निकाह करते वक्त उसकी कौन सी खूबी देखनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि औरतों से आम तौर पे 4 वजह से निकाह किया जाता है। हस्ब नसब की वजह से, माल की वजह से, हुस्न की वजह से और दीन की वजह से। लिहाजा तुम दीनदारी की वजह से औरत को तरजीह दो और उससे निकाह करो। जनाब, दीन वाली को तरजीह दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल, सेगमेंट इल्म नूर है का। लुकमान हकीम ने किस नबी अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुकमान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। हज़रत दाऊद का ज़माना पाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या लुकमान हकीम अल्लाह के नबी थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि लुकमान, हदीस पाक का मफ़हूम है कि लुकमान हकीम अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह ताला के बुरगज़ीदा बंदे और कामिल यकीन वाले बंदे थे। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत करते थे और अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत फरमाया करते। अल्लाह ताला से उन्हें मोहब्बत थी और अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, ये सेगमेंट यहाँ तो कंप्लीट हुआ। गलती किसी ने नहीं की है। दोनों टीमों की तैयारी मजबूत, 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे मगर पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से एक सवाल हो जाए। जी आतिफ भाई। आज जो इंशाल्लाह सवाल का जवाब देगा उन्हें मकतबतुल मदीना की ये बड़ी प्यारी किताब है, फैज़ान रियाजुस सालिहीन, माशाअल्लाह, हदीस मुबारका की किताब है और इसकी 4 जिल्दें हैं। इसके साथ तर्जमा भी है इसका,
اور یہ مکمل سیٹ 1495 روپے کا مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ آج اس کو تحفے میں دیں گے، یہ ایک جلد جو درست جواب دے گا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ صداقت علی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، کو مدنی قافلے میں بھیجنا چاہیے ان کو۔ چلیں بھیج دیں جلدی سے بھائی۔ چلیں نیت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ انہیں یہ کتاب بہت پیاری انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنہوں کے راستے، دونوں طرف کی ٹیم کے 10 نمبر ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ عشق کے بول لفظ کہاں سے آیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بات بھی ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت سے ہی سیکھنے کو ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبعہ لذت سوز جگر کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری طبیعت میں نبی پاک کے عشق کی ایک ایسی چاشنی آ جائے کہ جب جب پیارے آقا کا ذکر خیر ہو دل کی کلیاں کھل جایا کریں۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کے عشق سے سینہ معمور ہو جائے۔ جناب سیگمنٹ شروع کریں گے، 5 اشعار ہیں، دونوں ٹیمیں تیار ہو جائیں۔ پہلا شعر پوچھیں گے نکیال والوں سے۔ زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی، فلک پہ چھائے ہوئی ہے بدلی، زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی۔ تمام جنگل بھرے ہیں جل تھل، ہرے چمن لہلہا رہے ہیں، تمام جنگل بھرے ہیں جل تھل، ہرے چمن لہلہا رہے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمتی ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں، بزم مولا سجا رہے ہیں، سرکار سجا رہے ہیں۔ بزم مولد ہے لفظ، خدا کے فرمان پر عمل ہے کہ بزم مولد سجا رہے ہیں۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ نکیال والوں کی باری ہے۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، شفا کے راستے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ۔ مدد کا آپشن بھی آپ لے سکتے ہیں، دونوں ٹیموں کے پاس مدد کا ایک آپشن ہے، جلدی کیجئے گا، 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی۔ اللہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، یاد رہے 25 سیکنڈ کے اندر ہی اگر مدد لینی ہے تو اس آپشن کی طرف بھی جانا ہوگا۔ آپ کا وقت ختم ہوا، اب باری ہے یہ میں شعر پورا کر دیتا ہوں۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ جناب اب دیکھ لیجئے دوبارہ اسکرین پر، ہر ٹیم کے پاس ایک مدد کا آپشن ہے۔ ان چاروں میں سے کسی اسلامی بھائی سے مدد لی جا سکتی ہے اور ٹیلی فون کال کے ذریعے ہم کوشش کریں گے انہیں کال کرنے کی۔ پہلے 4 سیگمنٹ میں کال ملائی جا سکے گی، اس کے بعد آپشن نہیں رہتا جب ہم تحریر کیجئے یا سفر ہے مگر اکیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ملتان والوں کی باری ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ اس سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ نکیال والوں سے سوال ہے، کاش جانب طیبہ آہ یوں اگر جاتا، علم
काश जानिबे तैबा आह यूं अगर जाता। अगर शेर नहीं आता तो मदद का ऑप्शन ले लीजिए। हेल्प लेंगे जनाब, मदद लेंगे। 4 इस्लामी भाई मौजूद हैं स्क्रीन पर। बताइए किससे बात करना चाहेंगे? अकबर मदनी भी हैं, असद मदनी भाई हैं, यूसुफ मदनी भाई हैं और रिजवान मदनी भाई हैं। जरूरी नहीं कि उनको आपके सवाल का जवाब आता हो, लेकिन कॉल मिलाई जा सकती है। मोहम्मद असद अत्तारी। असद भाई, मदनी चैनल मजलिस के निगरान को कॉल मिलाई जाए। उनसे इंशाल्लाह जब तक कॉल मिलाई जाती है हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ सवाल कर लेते हैं। आप शेर सुनाएंगे इंशाल्लाह? चलें जनाब, आपने शेर सुनाना है। और आला हजरत के मक्ते का एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। आला हजरत लिखते हैं, दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है। बहुत प्यारा शेर है। देखें किस लाइन भाई ने हाथ उठाया। मक्ता पूछा आपने आला हजरत का, तोहफा भी आला हजरत के मजार शरीफ की चादर। क्या बात, सुभान अल्लाह। दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है जी। एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुतबर्रिक पानियों का मजमुआ और मज़ार आला हजरत की मुबारक चादर का पीस। इस जो शेर का मफहूम है ना, ये बड़ी प्यारी बात आला हज़रत ने की है कि हम नबी पाक की सनाखानी करें, नबी पाक का चर्चा बुलंद करें तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो आला हज़रत कहते हैं कि मैं प्यारे आका की शान बयान करता रहूँगा। अगर नबी पाक के दुश्मनों के ज़ख्मों को दिल जलते हैं और हमारा ये नबी पाक की सना करना नमक का काम देता है तो ठीक है, हम नमक छिड़कते रहेंगे। उनको लगता है तेज़ नमक चाहिए, तो एक ज़रा और छिड़कता रहे खामा तेरा। क्या बात है आला हज़रत की। जनाब कॉल मिल गई है? अच्छा जनाब, कॉल मिलाई जा रही है। राब्ता जैसे ही जुड़ता है तले एक और शेर सुनते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की क्या बात है। इमाम अहले सुन्नत का एक और मक्ता वैसे ही आला हज़रत कमाल करते हैं ना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मक्ता सुनाइए जनाब, जिसमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले का मक्ता सुनाइए इस कलाम का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैस। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चमक तुझसे पाते हैं सब जी। इसका मक्ता सुनाना है, मक्ता इस कलाम का आखिरी शेर सुनाना है। अच्छा बता रहे हैं कि असद भाई से राब्ता नहीं हो पा रहा, तो क्या उनमें से किसी और इस्लामी भाई से कॉल मिला दी जाए? जिनसे राब्ता हो जाए भाई उनसे मिला दें। डूबते को तिनके का सहारा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मदनी रजा अत्तारी जी। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुरुस्त जवाब पर इंशाल्लाह आला हजरत के मलफूजात का जो है वो मुकम्मल 4 हिस्से ये इंशाल्लाह इनको तोहफतन पेश की जा सकती है। अगर मदनी चैनल के नाजरीन या हाजरीन हासिल करना चाहें तो मकतबतुल मदीना से 250 रुपये हदिया में तलब कर सकते हैं इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। ये शेर तर्ज में भी सुना दे भाई। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मुबल्लिग दावत इस्लामी से जब राब्ता हो जाए तो बताइएगा। मदीना सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरों में मदनी चैनल के नाजरीन आपका दीदार करते हैं। अल्लाह आपको और अमीर अहले सुन्नत का कुर्ब अता फरमाए। आप कभी नकियाल गए हैं? कश्मीर नकियाल जानशीन अमीर अहले सुन्नत के साथ हाजिरी हुई है मेरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह गालिबन ये फैज़ान मदीना जो दिखाया गया जी, नकियाल में बहुत खूबसूरत फैज़ान मदीना भी है माशाअल्लाह।
नकियाल की टीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर लाइन कट गई है जनाब। नकियाल वाले दूर हैं लेकिन कनेक्शन यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। चलें भाई दोबारा कॉल मिलाइए और इंशाल्लाह हम नकियाल वालों के लिए ऐसा करते हैं, हम मुकाबले को आगे लेके चलते हैं। इनका शेर यहाँ हम रोक लेते हैं। अच्छा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह ये आप देखिए नकियाल में कितना खूबसूरत फैज़ान मदीना, बिल्कुल पहाड़ के किनारे और बहुत खूबसूरत है। जी रिजवान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रिजवान भाई आलमीन। नकियाल के इस्लामी भाइयों से एक शेर पूछा है और वो शेर उनको नहीं आता, मदद उन्होंने आपसे चाही है। मैं उसका पहला मिसरा पढ़ता हूं, आप उनकी अगर मदद कर सकें। काश जानिबे तैबा आह यूं अगर जाता। चाक जी जी रिजवान भाई। चाक एक मिनट। चाक चाक लेकर मैं सीना और जिगर जाता तालिबन। चलें, चाक चाक लेकर मैं सीना और जिगर जाता। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने कॉल किया। उम्मीद है नकियाल में आपकी अच्छी सी अब दावत भी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। जी क्या आप इस जवाब के साथ जाएंगे, क्या कहते हैं? जी जी जनाब रिजवान भाई का जो जवाब था वो जो उन्होंने दिया, नकियाल वाले भी उसे मान रहे हैं, मगर मामला ये है कि जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब मुल्तान वालों की बारी है। काम मेरा बन जाता जो तेरी नजर होती। मेरा डूबा बेड़ा भी या नबी उभर जाता। मेरा डूबा बेड़ा भी या नबी उभर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। निकाबे रुख उलट जाए तेरा जलवा नजर आए। नकियाल वालों अब मदद का ऑप्शन नहीं है, अब अपनी मदद आपके तहत जवाब देना है। जो आए तेरा साहिल बेपर मदीने में। थोड़ा सा इसको ठीक कर लें, सही पढ़ रहे हैं आप। दोबारा बोल दीजिए। निकाबे रुख उलट जाए तेरा जलवा नजर आए। जो आए तेरा साहिल बेपर मदीने में। जब आए काश तेरा साइले बेपर मदीने में। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूं दूर तैबा से। सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने। सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर नकियाल वालों से सवाल। अब मैं अगली लाइन पढ़ूंगा और आपको पहली लाइन पढ़नी है। तेरी याद से दिल निखारा करूं मैं। तेरी याद से दिल निखारा करूं मैं। अगर हो कल्ब सोना तो ये हो सुहागा। जो हो कल्ब सोना तो ये है सुहागा। तेरी याद से दिल निखारा करूं मैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नकियाल के इस्लामी भाई और मुल्तान के इस्लामी भाइयों का दूसरा सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। माशाल्लाह 20 नंबर हैं मुल्तान वालों के, 18 नंबर हैं नकियाल वालों के। 2 नंबर का फर्क है, मगर ये फर्क कभी भी कम हो सकता है। बात करेंगे, अब चलेंगे सेगमेंट बड़ा ही खूबसूरत, दिलचस्प, मुस्कुराहटों को बिखेरने वाला, वो है ज़बानो बयान।
जनाब ज़बान व बयान में हमें मुहावरे पूछने हैं, देखना यह है कश्मीर वालों को भी मुहावरे आते हैं कि नहीं। याद रहे एक सवाल 2 नंबर का और दूसरा सवाल 3 नंबर का होगा। पहला सवाल, पहला मुहावरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किसी चीज़ से हार के तो किसी और चीज़ पे गुस्सा निकालना, यानी शर्मिंदगी अपनी किसी और पे डालना। अच्छा, अपनी शर्मिंदगी दूसरों पर उतारना। तो अब इसका कोई जुमला भी तो बना के दें। वो मैच हारने के बाद अपने कैप्टन से यूं उलझ रहा है जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा जनाब, और हमारे उस्ताद साहब ने जो है वो एक खेल की मिसाल दी है, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वाकई ऐसा होता है, बाज़ औक़ात गलती अपनी होती है, अपनी शर्मिंदगी लोग दूसरों पर उतार रहे होते हैं। इम्तिहान में तैयारी खुद नहीं करते, कहते पेपर बड़े सख्त चेक हुए थे, निसाब पूरा नहीं हुआ था, तो ये नहीं करना चाहिए। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं, 2 नंबर ले लिए हैं। अब जनाब बारी मुल्तान वालों की है। मेंढकी को जुकाम होना। मेंढकी को जुकाम होना, इसका माना तो यह है खामखा बड़ा बनना। जी, खामखा बड़ा बनना। आजकल आप बहुत तेज बनते हो, ऐसे लगता है जैसे मेंढकी को जुकाम हो गया। ऐसा तो ना करें यार, मैं तो ऐसा नहीं करता। चले जनाब, मेंढकी को जुकाम होना, ये मिसाल है कि खामखा बड़ा बनना। वाकई इंसान को आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर रहना चाहिए। उम्मीद है इन्होंने ये मुझे नहीं कहा होगा, ये मुहावरा और जुमला बना रहे थे। बहरहाल जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। और अब हम चलते हैं नकियाल वालों की तरफ। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब कोई बंदा कोई गलत काम करता है या चोरी करता है तो वो शकूक व शुबहात का शिकार होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले तो इसका माना बताएंगे, फिर इसका पस मंजर भी बताएंगे। पस मंजर ये है पहले माना सही बताएं। जल्दी करें, टाइम वैसे ही खत्म हो गया। यही समझ आ रहा है कि जब कोई बंदा इस तरह की चोरी करे या कोई गलत काम करे तो वो खुद शकूक व शुबहात का शिकार होता है। अच्छा चले जुमला, पहले इसका पस मंजर बताएं। पस मंजर ये है कि एक शख्स था गांव में, तो उसके जो भूसा था उसमें एक तिजोरी थी, तो उसने वहाँ पे अपना माल औजार छुपा रखा था, तो किसी ने वहाँ से चुरा लिया। तो जब मामला वो पुलिस स्टेशन ले गया तो थानेदार बड़ा सियाना था, वो आया तो उसने जगह का जायज़ा लेते हुए देखा और सोचा कि कैसे चोर का पता लगाया जाए। तो उसने कहा कि जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। तो जो चोर था उसने फटाफट अपनी दाढ़ी को इस तरह सीधे किया और झाड़ा कि कहीं मेरी दाढ़ी में तो तिनका तो नहीं है। तो उस दिन से बस वो चोर पकड़ा गया और उस दिन से ये मुहावरा मशहूर हो गया। नॉर्मली होता क्या है कि ऐबदार जो शख्स जिससे गलत काम किया होता ना, तो कोई ऐसी हरकत करता है जिससे पहचाना जाता है। असल इसका माना ये है। अच्छा, इसको जरा जुमले में बनाइए। आप अपनी गलती चाहे जितनी मर्जी छुपा लें, लेकिन चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका नजर ही आ जाता है। गलती छुपाएंगे और बताएंगे नहीं तो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ जाएगा। जनाब चले, जनाब आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। 3 नंबर आपको मिल गए हैं। अब मुल्तान वालों की बारी है कि गिरने वाला सस्ता छूटे और गर्दन मेरी टूटे। इसका मतलब यह है कि मुसीबत किसी पर आनी हो लेकिन उससे टलकर किसी और दूसरी पर नागहानी मुसीबत आ जाए। अब इसका पस मंज़र यह है कि एक मजाक करने वाला मज़ाहिया शख्स एक बुलंद इमारत के नीचे से गुजर रहा था, तो अचानक उस इमारत से एक शख्स नीचे गिरा, तो वो उसके ऊपर गिरा, तो उस शख्स को तो गिरने वाले को तो कुछ ना हुआ, लेकिन जो यानी नीचे से गुजर रहा था यानी मज़ाहिया शख्स, उसकी गर्दन टूट गई। तो जब उससे उसके दोस्त ये वाक़या दरियाफ्त करने आए तो उसने ये जुमला कहा, तो जब से ये कहावत मशहूर हो गई। क्या कहा उसने? गिरने वाला सस्ता छूटे, गिरने वाला सस्ता छूटे। और मुहावरा ही नहीं पता आपको, तो फिर जुमला कैसे बनाओगे? आप रिपीट कर दें। गिरने वाला सस्ता छूटे और गर्दन मेरी टूटे। ठीक है, गिरने वाला सस्ता छूटे और गर्दन मेरी टूटे। जुमला बनाएं। इसका जुमला यह है कि जैद ने खालिद को
مارنے کے لیے گولی چلائی، لیکن وہ گولی جا کر عمر کو لگ گئی، تو یہ گویا اس کی مثال ہو گئی کہ گرنے والا سستہ چھوٹے اور گردن میری ٹوٹے۔ بہرحال یہ زید بھائی ہیں کون، گولی بھی چلاتے ہیں، نہیں چلانی چاہیے، کل سے ڈھونڈ رہا ہوں میں ان کو، اور یہ محاورہ ٹھیک ہے، اور یہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی اور پر آفت آتی ہے یا کوئی اور مشکل میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور پر مشکل آ جاتی ہے۔ اس سیگمنٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات زبان میں محاوروں کا استعمال ہوتا ہے، اور ہمیں محاورے پتہ ہوں تو با محاورہ بھی انسان گفتگو کر سکتا ہے اور ہونے والی بات بھی سمجھ آ جائے، اردو ادب کی بھی یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ جواب بھی درست مان لیتے ہیں، دونوں ٹیموں نے تھوڑی تھوڑی غلطی کی تھی، میں نے دونوں کو اگنور کر کے 3 نمبر دے دیے ہیں، جواب درست مانا جا رہا ہے۔ جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے نا حضرت؟ اچھا میری باری ہے جی، فرمائیے۔ اب آپ بتائیں نا، یہ جو چور کی داڑھی میں تنکا آپ نے کہا، تو اسی طرح ایک محاورہ کہا جاتا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی، تو یہ بتائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی، جو میں اس کا مطلب سمجھا ہوں کہ اب جو مل رہا ہے وہ تو لے لیں بھائی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر کسی کے پیسے کھا گیا یا کسی کے ساتھ بڑا اس نے فراڈ کر دیا ہے، اب جتنے پیسے نکلتے ہیں اتنے تو وہ دے نہیں رہا، جتنا دے رہا ہے اتنا ہی لے لو، بھاگتے چور کی لنگوٹی لے لو ورنہ وہ بھی لے کے نکل جائے گا۔ تو لنگوٹ تو نہیں اتارتے کسی کی، مطلب کہنے کا یہ کہ جو تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی لے لیں، تو یہ محاورے کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، ہمارا حق کہیں پھنسے نہ، اور ہماری کوئی رقم ہو یا ہمارا کوئی کسی کو دیا ہوا ہو بلکہ پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی دعا کر لیتے ہیں اللہ سب کو ان کا حق خیر سے واپس عطا فرما دے۔ جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب دونوں طرف ایک ملتان کی ٹیم ہے، ایک طرف نکیال، 25 نمبر ملتان، 23 نمبر نکیال۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ نکیال والوں سے سوال ہے، قرآن پاک کے بارے میں خوبصورت سیگمنٹ ہے، کس سورت کو چوتھائی قرآن کے برابر سے کہا جاتا ہے؟ کافرون۔ آپ نے کہا سورہ کافرون، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ لوح محفوظ بھی کتاب مبین ہے اور قرآن کریم بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ لوح محفوظ بھی کتاب مبین ہیں اور قرآن پاک بھی کتاب مبین ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ تک رسائی اللہ عز و جل کے خاص نیک بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، جبکہ قرآن پاک تک رسائی ہر مومن کو حاصل ہے، اگرچہ قرآن پاک کے اسرار اور رموز کی واقفیت بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوح محفوظ بھی کتاب مبین، قرآن بھی کتاب مبین، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ عز و جل کے خاص مقبول بندوں پر ہی ظاہر ہے، جبکہ قرآن کریم ہر مومن کے لیے ظاہر ہے، اگرچہ اس کے اسرار اور رموز کی معرفت بھی خاص بندوں کے ساتھ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ سبا کا نام سورہ سبا کیوں رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں ایک قبیلہ ہے اور یہ اپنے دادا سبا بن یشب بن یار بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس جو صورت میں سبا کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو جو ہے نا سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ جی، سورت کی آیت نمبر 15 میں قوم سبا کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ سبا کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہے کہ ایسی قوم تھی ناظرین جس کو بڑی نعمتیں حاصل تھی۔ میں جب اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ایسی ہوا تھی اس قوم کے پاس، ایسی آبادی تھی جہاں اتنی نیٹ اینڈ کلین ہوا تھی کہ ایک مکھی، ایک مچھر، کوئی جناب بچھو، کسی قسم کا کوئی جانور، یعنی جس کو آپ کہیں کہ تکلیف دینے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ نہیں تھے۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ درختوں سے پھل ایسے لدے ہوتے تھے کہ پھل توڑنے نہیں پڑتے تھے، کوئی ٹوکرے کو سر پر اٹھا کر چلتا تو پھل خود گر کر بھر جایا کرتے تھے۔ اتنی نعمتیں تھیں، مگر یہ قوم سرکش بن گئی، اللہ کی نافرمان بنی، اور اس کے بعد اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنی فرما برداری عطا فرمائے۔ ملتان والوں سے سوال ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل کے کتنے نام آئے ہیں؟ کل 300 نام آئے ہیں، جن میں سے 99 قرآن پاک میں ذکر ہیں۔ توریت، زبور، انجیل میں ہر ایک میں اللہ عز و جل کے 300 نام مذکور ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف اللہ عز و جل کے 99 اسماء حسنہ مذکور ہیں۔ جی، توریت، زبور اور انجیل میں سے ہر ایک میں اللہ عز و جل کے 300 نام آئے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ عز و جل کے 99 نام آئے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔
किस सूरत की इब्तिदा में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के आदाब बयान फरमाए गए? सूरह हुजरात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आदाब, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि उनसे गुफ्तगू कैसी करनी है और उनके सामने कलाम व बयान कैसे करना है, ये सूरह हुजरात में बयान किया गया। उनकी बारगाह में अपनी आवाजें नीची रखते हैं, उन्हें बख्शिश और बड़े सवाब की बिशारत दी गई, आदाब बयान किए गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुरूद शरीफ पढ़ने का जो हुक्म कुरान पाक में आया है, उसे नमाज, रोजे वगैरह के अहकाम से क्या खुसूसियत हासिल है? कुरान पाक में जहाँ भी नमाज, रोज़ा वगैरह अहकामात का जिक्र आया है, कहीं भी रब ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि मैं ये करता हूँ, लेकिन दुरूद पाक का जब हुक्म इरशाद फरमाया तो कहा कि तुम भी करो, मैं भी ये करता हूँ। उस आयत दुरूद का तर्जमा सुनाएंगे? जैसे कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ए मोमिनो तुम भी उस नबी पर खूब दरूद और सलाम भेजो। क्या बात है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ए मोमिनो तुम भी उन पर खूब दरूद और सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तारुफ कुरान सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ जनाब। आइए चलते एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मगर स्कोर बोर्ड से पहले आज हम आपके साथ करना चाह रहे हैं कसौटी। क्या बात है, देखिए हाजरीन की आवाज सुन रहे हैं आप? कितनी जोर से आई सुभान अल्लाह की आवाज। अब्दुल हबीब भाई से अभी क्या होने वाला है? जी हाँ, चले आप मुहावरे भी पूछ लेते हैं। ये मुकाबला इनके दरमियान है, मेरा आपका दरमियान तो नहीं है ना? मुकाबला आपसे कर भी नहीं रहे ना। चले जनाब, आपने कितने सवालात में जवाब देना है? 4 सवाल में। नहीं ऐसा ना करें यार, सीजन 11 है तो 11 सवाल तो वैसे स्टैंडर्ड है। 11 सवाल तो स्टैंडर्ड है ना। चले जी 11 सवाल। आपकी मुरादी जो शय है, क्या वो इंसान है? ला नहीं। क्या वो कोई मुकद्दस मकाम है? मुकद्दस मकाम नहीं। अच्छा, मकाम भी नहीं है। 2 सवाल हो गए। इंसान भी नहीं है। क्या वो कोई मुकद्दस शय है? शय कहा जा सकता है उसको। शय है, मुकद्दस कहा जा सकता है। चले आप नाम। जी हाँ। क्या उसका जिक्र कुरान में है? कुरान में जो चीज हमने सोची है उसका जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान में वैसे तो हर चीज का जिक्र है, लेकिन जिसको सराहतन कहा जाता है। सराहतन नहीं। 4 सवाल होगा आपके माशाल्लाह। क्या वो चीज इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है? स्टूडियो में भी मौजूद है। क्या वो कोई किताब है? किताब बता दें जी। कितने सवाल हो गए? 6 सवाल हुए। गरीब नवाज पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अब आपके पास पता नहीं तबरुकात कौन कौन से किताब, तो खैर अच्छा किताब है। अब दिलचस्प मालूमात है ना? हाँ, दिलचस्प मालूमात भी रखी हुई यहाँ पर। कुरान में उसका जिक्र नहीं है। ये दिलचस्प मालूमात किताब है। कितनी प्यारी किताबें देखें हैं। जी माशाल्लाह। वो किताब मकतबतुल मदीना ने जारी की है। एक मिनट, हमारे पास वैसे जी मकतबतुल मदीना की होती है। मकतबतुल मदीना नहीं, पूरा स्टॉल है हमारे पास मकतबतुल मदीना का। जी माशाल्लाह। देखे तो सही, क्या बात है। बाहर ही बाहर हैं। 7 सवाल हो गए। क्या हर महीने वो जारी किया जाता है? हर महीने वो रिसाला हर महीने जारी किया जाता है? हर महीने एहतिमाम के साथ हर महीने जारी नहीं होता। नहीं, हर महीने से क्या मुराद है? ऐसे माहनामा फैजान मदीना हर महीने जारी होता है ना? नहीं, आप हमारी मुराद माहनामा फैजान मदीना नहीं। कितने सवाल हो गए भाई? 8 सवाल हो गए। 3 सवाल बाकी। क्या उसके जरिए हम मुहासबा करते हैं? यार ये उसके जरिए मुहासबा करते हैं जी। करना चाहिए वैसे, उसके जरिए किया जा सकता है, मगर जिसे मदनी इनामात कहते हैं वो नहीं है। अच्छा, मदनी इनामात का रिसाला नहीं है। 2 सवाल बाकी।
ٹائم بھی نہیں چل رہا ہے یہاں. دیکھیں آپ کے ساتھ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں لوگ. نہیں سپورٹ تو کیا، آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا ہے تو یہ تو کوئی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے. ٹائم بھی تو چلنا چاہیے نا حضور. دیکھیے جی مدنی کسوٹی کا اصول ہے مشہور ہی چیز پوچھی جاتی ہے نا، تو اب مشہور ہوگی تو. قرآن نہیں ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں ہے، مدنی انعامات کا رسالہ نہیں ہے. اب کتابیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری کفریہ کلمات کے بارے میں کتابیں دکھائیں دوبارہ دکھائیں ہمارے مکتبۃ المدینہ کو دکھائیں. کیا وہ امیر اہل سنت کی تحریر کردہ کتاب ہے؟ امیر اہل سنت کی تحریر کردہ ہمارے پاس ویسے بہت ساری رکھی، نماز کے احکام بھی رکھی ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ ہر سوال کے بعد سوچتے کیوں، بعد میں چینج کرتے رہتے ہو کیا؟ نہیں ہمارے سوچنے پر نا یہاں پر بہت ساری مسکراہٹیں آ رہی، ناظرین بھی مسکرا رہے ہوں گے. جی امیر اہل سنت کی تحریر کردہ ہے. اچھا جناب، کیا کتنے سوال رہ گئے؟ آخری سوال. اچھا یہ کتاب جو ہے کیا اس کو آئے ہوئے منظر عام پر 1 سال ہی ہوا ہے، یعنی 1 سال کے اندر اندر آئی ہے؟ جی 1 سال کے اندر ہی، 1 سال ہی ہوا ہے تقریباً، 1 سال کے اندر ہی اندر ہے. جی جی جی. اور اب آپ پیش کریں گے مدنی فیس انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اس کتاب کو پوری پڑھنے کی جلد نیت کرتا ہوں. آپ کی مرادی کتاب فیضان نماز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. میرا تحفہ کہاں ہے؟ تحفہ تو دیا کرو بھائی، فیس بھی لے لی. مقابلہ تو ہم نے کیا نہیں تھا نا حضور، پہلے عرض کر دیا کہ مقابلہ نہیں. کیا بات ہے باپو آپ کی بھی. چلیں جناب مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی 31 نمبر ہے 31 ملتان 29 نکیال. آئیے اب حاصل کرتے ہیں بڑی پیاری اور انوکھی معلومات. چلتے ہیں سیگمنٹ انوکھی معلومات کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات. What is the supreme activity for a Muslim? ایک مسلمان کے لیے اہم ترین کام کون سا ہے؟ So important کہ خود رب کائنات ہمارا رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، قرآن مجید میں اس الٹیمیٹ ٹیکسٹ میں 700 بار جس کام کا ذکر فرمائے وہ کام کتنا اہم ہوگا. جی اس کو دین کا ستون کہا گیا ہے. ہر علم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے اور ایک انجینئر ڈگریوں کے انبار لگا دے، لیکن قیامت کے روز سب سے پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہی ہوگا. اور ایک مسلمان کو جو کام بہترین انداز سے کرنا آنا چاہیے یقیناً وہ نماز ہے. دا بیسٹ پرفارمنس، کیونکہ یاد رکھیے بغیر ستون کے عمارت کھڑی نہیں ہوتی. آج دنیا میں جو ظلم ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، یہ سب برے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ 1 لائن سولوشن ان قرآن. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم نماز کے آداب کا خیال رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، کیونکہ جیسا ان پٹ ہوگا ویسا آؤٹ پٹ ہوگا، ویسا ہی ریزلٹ ہوگا. کہا گیا کہ جو نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے نماز اسے ٹھیک کر دیتی ہے. کیسی شان ہے. ایک انسان کو اپنے چہرے پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے گلوبل انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ورتھ $500 بلین ہے. اور نماز کے دوران سجدے میں انسان اپنا یہی سر، یہی چہرہ رب تعالیٰ کے حضور زمین پہ رکھ دیتا ہے. اور کتنی عاجزی ہوتی ہے. فرمایا کہ انسان سجدے کے دوران اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. اور نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے. ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آپ پر تہجد بھی فرض تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشراق و چاشت کے نوافل بھی ادا فرماتے. غزوات کے دوران کفار مد و مقابل ہیں اور تلواریں چل رہی ہیں، نماز کا وقت آتا صفیں سیدھی ہو جایا کرتی. تو نماز کبھی نہ چھوڑیے. یہ ایک کتاب ہے فیضان نماز، اتنی زبردست ماسٹر پیس ہینڈ رائٹنگ ہے میرے امیر اہل سنت کی. اتنے بہترین انداز سے نماز کے ہر ڈائنامکس کے اوپر، ہر ڈائمینشن کے اوپر کلام کیا گیا ہے. آپ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں. اور آج کا جو ہماری اپلیکیشن ہوگی وہ ہوگی ذہنی آزمائش
क्विज एप्लीकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपडेट वर्जन इस वक्त एंड्रॉइड पर iOS पर मौजूद है। हासिल कीजिए इसको और खूब इस्तेफादा हासिल कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी मालूमात हमें हासिल होती हैं अनोखी मालूमात सेगमेंट में। अब वक्त हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट का, वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। मदरी चैनल के नाजरीन, आज हमारे सराइकी इस्लामी भाई तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह सराइकी ज़बान में इंशाअल्लाह मदनी फूल पेश किए जाएंगे। घर विच आवन दे वंजण दियां सुन्नतां ते आदाब। मिठे मिठे इस्लामी भराओं ते मदनी चैनल को देखण आलो, अज असां घर विच आउण ते वंजण दियां सुन्नतां ते आदाब सीखण दी कोशिश करे सो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। हुण मैं सराइकी ज़बान विच बयान करण दी कोशिश करे सां, बोलण विच कोई गलती थी वञे तो मेरे को माफ़ चा करी जो। मिठे मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जड़ा भी घर आओ तो पहले घर आल को सलाम करो ते वजड़ वेले भी सलाम करते वंजो। अपने घर विच आमदे हुए भी सलाम करो ते वहदे हुए भी सलाम करो। घर विच दाखिल थीवण वेले पहले सज्जा पैर रखो ते बाहर निकलण वेले खब्बा पैर रखो। जेड़ा बंदा अल्लाह अज़्ज़ वजल दा नाम जेड़ा बंदा अल्लाह अज़्ज़ वजल दा ना गिदे बगैर घर विच दाखिल थीवे तो शैतान भी ओंदे नाल घर विच आ वेंदे। मिठे मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे, जड़ा बंदा घर विच दाखिल थींदिए ते खाना खमदिए अल्लाह अज़्ज़ वजल दा जिक्र करेंदे तो शैतान अखेंदे अज इथा ना रात गुजरसी ते ना ही रोटी मिलसी। जड़ा बंदा अल्लाह अज़्ज़ वजल दा जिक्र कीते बगैर घर विच आमदे तो शैतान आखदे मैं अज रात इथे ही रहसा। ते जड़ा खावण वेले अल्लाह सही अल्लाह अज़्ज़ वजल दा ना ना गिने तो शैतान आदे कि अज तीकू राण दी जा भी मिल गई है ते रोटी भी मिल गई है। जड़ा कोई बख्ते आला बंदा घर कने बाहर वंजण वेले घर कने बाहर निकलण दी दुआ पढ़ गिने तो घर वलन तई ओ हर बला ते आफत तू महफूज रहंदे। जड़ा कहीं दे घर वंजो तो उनका तरीकाकार यह है कि पहले इजाजत मंगो, जेड़े वेले अंदर वंजो तो पहले सलाम करो ते वल घाल करो। या अल्लाह अज़्ज़ वजल असा सारी को सुन्नत दे मुताबिक घर विच दाखिल थीवण दी तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सराइकी भरावा वास्ते अज दा सवाल, घर विच दाखिल थीवण दा तरीका दसाओ। सराइकी जबान विच, सराइकी जबान में जवाब देना। हाँ, जिसको जवाब नहीं आया तो वो मदनी काफिले में सफर करेगा और हाथों हाथ नियत का इजहार भी करेगा। सराइकी विच दसना है इंशाल्लाह। ये दिलचस्प मालूमात ये इंशाल्लाह इनको तोहफे में पेश करेंगे इंशाल्लाह जी। चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल गफार सईदी है। थोड़े सवाल का जवाब ये है कि जिस टाइम घर आओ तो सज्जा पैर रखो तो जिस टाइम घर कने बाहर वञो तो खब्बा पैर बाहर रखो। पहले घर आओ तो पहले सज्जा पैर अंदर रखो, जिस टाइम घर तो बाहर वञो तो वाला पहले खब्बा पैर बाहर ते वल घर आलियां नु घर वाले को सलाम करो। आमदे हुई तो टाइम बाहर वञो हूँ टाइम सलाम करते वाला बाहर। क्या बात है, क्या बात है, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इनकी जुबान में कहना आपका जवाब दुरुस्त है। इनकी जबान का जवाब जरा ये सिखाएंगे मुझे भाई, क्या जवाब आपका जवाब दुरुस्त है, कैसे कहेंगे? तो सादा जवाब सही है। तो सादा जवाब सही है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, अब इंशाल्लाह नात शरीफ भी पढ़ेंगे सराइकी जबान में इंशाल्लाह। नात ख्वाह इस्लामी भाई जरा साथ देंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमें ढोला करा बैठी जारी, आमें ढोला करा बैठी जारी। मैं मुक्ति मुकावा, मैं मुक्ति मुकावा, तू जितियो मैं हारी। आमें ढोला करा बैठी जारी।
اتنی پیاری التجا ہے کہ حکیماں طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں، جو میرے اندر مرض ہے، جو نبی پاک کے ہجر میں تڑپ رہا ہوں، یہ حکیموں کے بس کی بات نہیں ہے، تو آ کے وکھا جا او صورت پیاری۔ آقا میں تڑپ رہا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، یہ جو تڑپ ہے اس کا علاج حکیموں کے پاس نہیں ہے، حضور آپ دیدار کرا دیں گے تو دل بے قرار کو سکون مل جائے گا۔ بہت پیاری بات، اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ آخر میں سرائکی زبان میں مدنی مقصد دہرائیں گے، بیکو اپنی تے ساری دنیا دے لوکی دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا اب اس کا نعرہ یہ ہوگا، کفل مدینہ لگیا ریسی، کفل مدینہ لگیا ریسی۔ اچھا اب اس کا اگلا نعرہ ہے، سرتے زلفاں سجیاں ریسن، سرتے زلفاں سجیاں ریسن، سرتے امامہ سجیاں ریسن، شیطان دے خلاف جنگ چلتی ریسی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی، یہ آج آپ نے ان کی زبان میں مدنی مقصد بیان کیا، اس سے پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ پشتو بھی بولی، بلوچی بھی بولی، تو آپ نے مدنی مقصد بیان نہیں کیا تھا، آج کوئی خاص بات تھی؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ فیڈ بیک آتا ہے، تو ہمیں ایک میسج آیا تھا تو ہم نے آج سے نیت کر لی ہے، ان کے میسج کا شکریہ، اور ہماری ایک اور نیت بھی ہے کہ ہم قومی زبانوں کو، مجھے بہت ساری زبانوں کے لیے میسج آ رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور کہ ہم اور بھی پاکستان کی زبانوں کو شامل کریں، مجھے انٹرنیشنل زبانوں کے بھی میسج آ رہے ہیں، تو ہمارا یہ سیگمنٹ وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ ہے، تو فرینچ، اٹیلین اور انگلش وغیرہ کا اس بار شاید موقع نہ ہو، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ وطن کے رنگ میں رہیں، البتہ سب کو رنگ جس نے دیا ہے وہ میرے آقا کی زبان ہے، تو انشاءاللہ عربی میں بھی سیگمنٹ کریں گے اور آگے جا کے اور زبانوں کو بھی ایڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ بھی مشورے دیجیے ہمارے فیڈ بیک پر، اور مشورہ بھی دیجیے گا، اور ہو سکتا ہے میں پھر آپ کی ہیلپ بھی چاہیے، تو مجھے بہت ساری زبانیں آ گئی ہیں، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، انشاءاللہ آپ وقتاً فوقتاً اور زبانوں کو بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ چلے جناب آ جائیں، دونوں طرف کی ٹیمیں آ جائیں، پہلے نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ، محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی یہاں نعت خواہ بھائی آئیں گے، آپ جی نعت شریف پڑھیں گے پہلے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم محاسبہ کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، مل کے بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، مل کے بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، زمین و زمان تمہارے
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے صاحب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بادام تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محل پہ ایسے منت یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور اشارے سے سرکار ہے ایسا تم سا تو حسین آنکھ نے آقا دیکھا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے آقا دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ بولو سایہ نہیں کوئی ہاں یہ شان لطافت ہے کہ سایہ سکھ متران دی بدیری یوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں چک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی مک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف دے اکھ مستانی کالی زلف دے اکھ مستانی کالی زلف دے اکھ مستانی مخبور اکھیں ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقت رب دی شانہ کا سچ آقت رب دی شانہ کا سچ آقت رب دی شانہ کا وہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں تے سبحان اللہ کتنے جاڑیاں بولو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں وقت ہوا ہے اپنا فکر مدینہ کر لیجئے، اپنے مدنی نامت کے رسالہ نکالیے، اپلیکیشن نکال لیجئے اور محاسبہ کروایا جائے گا۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लाम भाई जो मौजूद हैं या सिलसिला देख रहे हैं, अपने अपने मदनी इनामात के रसाले निकाल लीजिए। मदनी इनाम नंबर 1, कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, नमाज पंजगाना के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, शजरा शरीफ के कुछ ना कुछ औराद और 313 बार दुरूद पाक पढ़ा, मुसलमानों को सलाम किया, आप और जी कहकर गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह कहा, सलाम और छींक का जवाब देने वाले की हम्द पर जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती की कोशिश की, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए, फैज़ान सुन्नत से 2 दर्स दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब का 12 मिनट मुताला किया, 12 मिनट फ़िक्र मदीना की सलातु तौबा अदा की, चटाई पर सोए नीस रहाने सुन्नत बख्श रखा, सुन्नत कबलिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद इशराक व चाश अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वुज़ू और मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान से 3 आयात मा तर्जुमा तफसीर पढ़ी या सुनी, 2 पर इनफिरादी कोशिश की, मदनी कामों में 2 घंटे सर्फ किए, अपने निगरान की इताअत की, दूसरों से मांग कर चीज़ इस्तेमाल तो नहीं की, मुसलमान से गलती सादिर हो जाने की सूरत में इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, किबले की समत रुख रखा, गुस्से का इलाज किया, फजूल सवालात तो नहीं किए, ना महरमों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने और सुनने से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश की, तोहमतों गाली गलोच से बचे, दूसरों की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, अक्सर निगाहें नीची रखीं, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ गीबत चुगली हसद तकब्बुर वादा खिलाफी से बचने में कामयाब हुए, दिन का अक्सर हिस्सा बावजूद रहे, मुखातब के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, कर्ज होने की सूरत में जल्द अदा किया, मुसलमानों की ऐब पोशी की, यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज व दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं किए जिनकी दिल तायीद ना करे, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारे से और कम अज़ कम 4 बार लिखकर गुफ्तगू की, 1 घंटा 12 मिनट मदनी चैनल बयान या मदनी मुज़ाकरा देखा, मजाक मस्करी तंज़ील अदारी और कहका लगाने से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश की, मायूब लिबास तो नहीं पहना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, अब कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉल्स को सिलसिले में शामिल करते हैं। जी कुछ टेक्निकल इशू है, इंशाल्लाह 1-2 मिनट में उम्मीद है हल हो जाएगा। तो यूँ करते हैं कि दोनों टीमें अपनी अपनी जगह तशरीफ़ रखेंगे और नाथुआ इस्लाम में भी अपनी तरह जगह तशरीफ़ रखेंगे। जैसे ही सिस्टम में प्रॉब्लम दूर होगी तो हम कॉल्स ले लेंगे सिलसिले में इंशाल्लाह। आइए जब तक हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए, बताया जाए कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 31 नंबर है, 31 नंबर है मुल्तान के, 29 नंबर है नकियाल के, 2 नंबर का फर्क है। कम बैक करना होगा कश्मीर के इस्लामी भाइयों को अगर मुकाबले में वापस आना है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है तहरीर कीजिए। दोनों तरफ के इस्लामी भाई एक एक टीम का इस्लाम भाई आगे आ जाए नुमाइंदे के तौर पर। तहरीर करना है, और क्या तहरीर करना है ये तो जब पर्ची निकलेगी तो पता चलेगा, और किसने ज़्यादा लिखा और किसको नंबर मिलते हैं। यहाँ मुल्तान वाले भाई यहाँ आ जाएंगे, कश्मीर वाले भाई इधर आ जाएंगे, अपना मार्कर ले लें और इंशाल्लाह पर्चियाँ आती हैं तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है जो आपने लिखना है। जी जी अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाएं, मार्कर दीजिए इन्हें। मार्कर आपका वहाँ मौजूद है, मार्कर ले लें। और 60 सेकंड्स हैं, अपने बोर्ड की तरफ ही देखेंगे, दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। और आपने अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नाम लिखने, अस्माउल हुस्ना लिखने हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। एक नाम के साथ अज़्ज़ वजल एक बार जरूर लिख दीजिएगा।
जी 60 सेकंड हैं। अपने बोर्ड की तरफ नजर रखें। अल्लाह करीम के मुबारक नाम लिखने हैं, अस्माउल हुस्ना लिखने हैं। देखें कौन ज्यादा लिखते हैं। जिन्होंने ज्यादा लिखे, सही लिखे, उन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। मुल्तान वाले भी कोशिश कर रहे हैं, नकियाल वाले भी कोशिश कर रहे हैं। 25 सेकंड रह गए हैं। पंद्रह सेकंड रह गए जनाब। सात सेकंड रह गए। इस तरह लिखिएगा कि मैं पढ़ सकूं। डॉक्टर की राइटिंग में ना लिखिए कि पढ़ाई ना दे। आखिरी टाइम पूरा हो गया, रुक जाएंगे जनाब। मैं यहाँ काउंट करूंगा, आप इधर आ जाएं और मजलिस भी चेक करती रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह, रहमान, रहीम, अलीम, बसीर, नज़ीर, मलिक, कुद्दूस, सलाम, मुमिन, मुहैमिन, अजीज, ये अजीज है, जब्बार, मुतकब्बिर, खालिक, बारी, मुसव्विर, समी, रब, खालिक। मेरा ख्याल खालिक 2 बार हो गया है, और भी चेक कर लिया जाए, कोई 2 बार तो नहीं हुआ। रब, रब वैसे नाम अस्माउल हुस्ना में रब तो नाम नहीं है ना? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इन्होंने 18 नाम लिखे हैं। मजलिस मजीद इसको क्रॉस चेक करे जब तक मैं जरा सामने वालों का हिसाब किताब देख के आऊं। अच्छा, रब अज़्ज़ा वजल नाम है तो फिर वहां 19 हो गए ना। चलें, रहमान, रहीम, हन्नान, मन्नान, कुद्दूस, सत्तार, गफ्फार, कहार, करीम, गफूर, मलिक, सलाम, मुमिन, मुहैमिन, अजीज, जब्बार, अल कहार, मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन्होंने 20 नाम लिखे हैं और इनका ताल्लुक कश्मीर से है, और उधर रब अज़्ज़ा वजल को भी मिला ले तो 19 बनते हैं। तो नकियाल वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मुकाबले में बराबर हो गए नकियाल वाले। अब दोबारा अपना बोर्ड, ब्लैक बोर्ड साफ करेंगे, और आप में से अगर कोई इस्लामी भाई चेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अपना इस्लामी भाई तब्दील करना चाहे तो तब्दील कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, पर सवाल के बाद चेंज नहीं कर सकते जनाब। जनाब, अब एक बार फिर आपने कुछ लिखना है। वो क्या लिखना है, पहले आप रेडी हो जाएं। जी जनाब, रेडी हो गए भाई? 60 सेकंड हैं और आपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखने हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स हैं आपके पास। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम तहरीर कीजिए। हमारे पास 35 सेकंड हैं। पच्चीस सेकंड हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम लिख रहे हैं। एक बार अलैहिस्सलाम लिखेंगे किसी भी नाम के साथ। 10 सेकंड रह गए जनाब। 5 सेकंड रह गए। वक्त खत्म हो गया है, रुक जाएंगे दोनों तरफ के इस्लामी भाई। जनाब मार्कर दीजिए, आप इधर आ जाएं। मुल्तान वाले भाई, नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ, हजरत जुल्किफल, हजरत अय्यूब, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत इस्माईल, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत खिजर, हजरत इलियास, हजरत यूनुस, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये भी चेक, यूसुफ 2 बार आ गया जी, ठीक है। तो बाकी तो मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नाम लिखे हैं नबियों के मुल्तान वालों ने जी। ये पकड़िए। अब बारी कश्मीर वालों की है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इदरीस, हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल का इन्होंने नाम लिखा है। क्या ये नाम माना जाएगा? हज़रत
अबू यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नाम गिने जाएंगे। अगर हज़रत जिब्राइल का नाम, वैसे तो अंबिया और रसूल फरिश्तों में कहलाते हैं, लेकिन बहर सूरत मुल्तान वालों ने नाम ज़्यादा लिखे हैं, तो 2 नंबर मुल्तान वालों ने हासिल कर लिए हैं। जी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल मलाइका में से हैं, अंबिया के नाम पूछे गए थे। बहरहाल मुल्तान वालों ने ज़्यादा नंबर हासिल किए, ज़्यादा नाम लिखे। दोनों टीमें अपनी जगह पर बैठेंगी 2-2 नंबर लेकर, फिर मुकाबले में 2 नंबर का फ़र्क है। गोया अब फैसला करेगा आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। जनाब, सफ़र है मगर अकेले सेगमेंट करने से पहले नाजरीन की कॉल्स आज रह गई थी, आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मोहम्मद हसनैन मुजाहिद लाहौर से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा है। इसके तवस्सुत से हम अपने दामनों को इल्म हिकमत के मोतियों से लबरेज करते हैं। लाहौर के इस्लामी भाइयों की ख्वाहिश है कि इस बार आप ज़हनी आज़माइश का फ़ाइनल लाहौर में मुनक्किद करवाएं और इल्म हिकमत के मोती उन्हें भी लाइव समेटना नसीब हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने दुआओं से भी नवाजा। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सिलसिला बहुत ही प्यारा। दुआ है अल्लाह करीम आपको, आपकी सारी टीम को इज्जत वाली, सेहत वाली, बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, इसी तरह दुआओं से नवाजते रहा करें। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम नदीम कादरी है, मैं डिग्री से बात कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब भाई, माशाल्लाह आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ज़बरदस्त है। हम सब घर वाले मिलकर देखते हैं और आपसे गुजारिश है कि ज़हनी आजमाइश का फ़ाइनल ज़िला मीरपुर ख़ास के शहर डिग्री में किया जाए, जिससे इस्लामी भाइयों की दिलजोई होगी और हमारी ख्वाहिश भी पूरी होगी। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। चलिए देखिए जनाब, अगली कॉल दीजिएगा। मैं सही प्रोग्राम माशाल्लाह रोजाना देखता हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और प्रोग्राम में थोड़ी टाइमिंग थोड़ी सी नीचे आ जाए, 9 से 11 तक हो जाए। 9 से 11 हो जाए। चलिए जनाब, मजलिस तक की आपकी आवाज़ भी पहुँच। और पहले भी सिलसिले होते हैं, बराह रास्त के सिलसिले होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट हम तक पहुँच गई है। अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब भाई, आपका बहुत ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 11 जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है, इससे हमें कसीर तादाद में इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है। हाई साहब, कराची में जिस तरह सीज़न 11 का फ़ाइनल होने जा रहा है, तो अगर ऐसा हो कि सीज़न 11 का फ़ाइनल फैसलाबाद में हो जाए, इससे यहाँ के इस्लामी भाइयों की दिलजोई भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन और दुनिया की बरकतें नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके मशवरे जमा हो रहे हैं, देखें क्या होता है। अगली कॉल दीजिएगा। मैं इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला ज़हनी आज़माइश जो धूमधाम से जारी है। मैं और मेरे घर वाले काफ़ी कुछ यहाँ से देख के सीखते हैं, काफ़ी कुछ इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह देखने में बहुत खुशी महसूस होती है। अब्दुल हबीब भाई का जो अंदाज़ है माशाल्लाह मदीना मदीना है। और अब्दुल हबीब भाई से मेरी गुजारिश है कि ज़हनी आज़माइश का जो फाइनल है वो इस्लामाबाद में किया जाए। ये मेरी अर्ज़ भी है, गुजारिश भी है। और जिस तरह से भी आप ले लें, बराए करम ज़हनी का फाइनल जो है वो इस्लामाबाद में किया जाए। मेहरबानी, आपकी अर्ज है, गुजारिश है, बाद में आपने हुक्म नहीं कह दिया। लेकिन जाहिर है कि अब मुझे लगता है मदनी चैनल पर लाइव कर दिया जाए तो सब जगह लाइव हो जाएगा। वैसे ये मुहावरा जो एक अनार 100 बीमार वाला आज पूरा सादिकार है। अच्छा जनाब, आखिरी कॉल दीजिएगा सिलसिले में, फिर चलते हैं फाइनल राउंड। मैं हसनैन रजा अत्तारी जमजम नगर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश सीज़न 11 बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रोज़ बहुत ही प्यारा सिलसिला है। तो अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि इस साल ज़हनी आज़माइश का फ़ाइनल जमजम नगर हैदराबाद में हो तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आएगा। अगर चले जनाब, एक और कॉल दे दें भाई। नाम मोहम्मद मुश्ताक रज़ा अत्तारी है और मैं दुबई से बोल रहा हूँ। प्यारे हबीब अंकल, आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत ही अच्छा है। प्यारे हबीब अंकल, आप अपने प्रोग्राम में जुनैद अंकल को बुलाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले भाई, जल्दी से बुला लें जुनैद भाई को, काफ़ी सारी कॉलें आ गई हैं। एक और कॉल लेते हैं।
हाजी हबीब भाई, मैं पाकपतन के शहर अडारंगशाह से बात कर रहा हूँ। हाजी हबीब भाई, आपका ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हाजी हबीब भाई, आप उसके अंदर सेगमेंट वतन के संग जौन सा करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ बोलियां बोलते हैं, कभी उसके अंदर रंगड़ी बोली बोलिए। प्लीज प्लीज प्लीज, जज़ाकल्लाहु खैरा। चले भाई, 3 बार आपने प्लीज बोला है तो सोचना पड़ेगा। आखिरी कॉल दे दीजिए। माशाअल्लाह, ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हम सब घर वाले बैठकर इकट्ठे देखते हैं। माशाअल्लाह, ये देखने से बहुत ही इल्म में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। कॉल्स रह जाती है बहुत सारी, माजरत खाऊं, मुझे कान में बार बार हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे होते हैं और कॉल्स ले लें, लेकिन मैं बहुत सारी कॉल्स लूँगा तो सिलसिला लेट हो जाएगा। तो बहरहाल आप सबकी कॉल्स का, सबके मैसेजेस का, सबकी अप्रिसिएशन, दुआओं का मैं फेसबुक पर जाकर भी कोशिश करता हूँ आपके कुछ मैसेजेस पढ़ूँ जो आप लाइव फेसबुक हमारा देख रहे होते हैं और वहाँ मैसेजेस करते हैं। यूट्यूब पर आप इस सिलसिले को देखते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। हमने आपकी सहूलत के लिए कि जो लोग पूरा सिलसिला नहीं देख सकते, रोज़ाना हम कोशिश करते हैं कि ज़हनी आज़माइश के हर एपिसोड का, हर सिलसिले का एक हाईलाइट भी, एक झलकियां भी जारी कर दी जाएं। 8-10 मिनट में आप राउंड अप देख लें कि पूरा प्रोग्राम कैसा हुआ। शॉर्ट वर्जन हम जारी करते हैं, तो वो भी आप हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल, जो आप स्क्रीन पर बार बार देखते हैं, जो हमारे ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के पेजेस हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सफर है मगर अकेले। इस्लामी भाई खड़े हो जाएंगे और एक एक इस्लामी भाई आपस में स्वैप हो जाएंगे। सफ़र करना है अकेले, 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। आपने सही कहना है या गलत कहना है, और कुछ नहीं कहना है, और 5-5 नंबर लेने का मौका है। शुरू करेंगे हम उस्ताद साहब से, मोहम्मद इरफान साहब से, जो कश्मीर से आए हैं। आपने सही कहना है उस्ताद साहब या गलत कहना है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज लौटाया। दुरुस्त। सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सही। 4 अंबिया इकराम अब भी ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं। गलत। सूरह कौसर को सुलुसुल कुरान यानी तिहाई कुरान कहा जाता है। गलत। नमाज जुमा औरतों पर फर्ज नहीं है। दुरुस्त। क्या कहा आपने? सही। एहयाउल उलूम किताब इमाम गजाली की तसनीफ है। दुरुस्त। जनाब देखना यह है 5 में कितने सही हैं, कितने गलत हैं। कश्मीर से आए हुए स्कूल टीचर साहब ने एक गलती कर दी है। 4 अंबिया इकराम अब भी ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं, यहाँ ये गलती हुई, 4 नंबर हासिल कर लिए। तैयब भाई की बारी है जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का नाम अहमद है। दुरुस्त। सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सही। आजाद मर्दों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारसा इस्लाम लाए। गलत। सियासत्ता इल्म फिका की मशहूर किताबों को कहते हैं। गलत। खादिमुन नबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब नहीं था। गलत। इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़ार बगदाद में है। दुरुस्त। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बहुत शानदार। अब बारी है मोहम्मद तौसीक की, कश्मीर से आए हैं। सवालात कबर करने वाले फरिश्तों के नाम मुनकर नकीर हैं। दुरुस्त। सही कहेंगे या गलत कहेंगे? आमाल लिखने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। सही। हजरे अस्वद मदीना मुनव्वरा में है। गलत। इमाम मालिक को इमाम दारुल हिजरत भी कहा जाता है। गलत। अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। गलत। जनाब ये गलती हो गई है आपसे। देखना यह है तौसीक ने कितनी गलतियां की हैं। तौसीक से 2 गलतियां हो गई हैं। अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम का ही लक़ब है और इमाम मालिक को इमाम दारुल हिजरत भी कहा जाता है। अब जनाब बारी है इरफान रजा की, मुल्तान से ताल्लुक है। हजरत खदीजतुल कुबरा सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन हैं। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला है। सही। आदम सानी हजरत नूह को कहा जाता है। सही। जंगे बदर में 5000 फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की। सही। और उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज्यादा अहदीस प्यारे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बरवी हैं। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुल्तान की टीम आगे बढ़ते हुए कश्मीर के आखिरी इस्लामी भाई, अब उनकी बारी है। मेहरान नाम है। गसीलुल मलाइका हजरत हंजला का लक़ब है। दुरुस्त। सही कहेंगे? सही। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली के भाई थे। गलत। सबसे पहली कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। दुरुस्त। हजरत उमर फारूक ने 10 बरस खिलाफत फरमाई। दुरुस्त। सही कहेंगे? गलत। दुरुस्त को क्या कहते हैं? सही कहते हैं ना? गलत। ये इसका जवाब क्या देना चाह रहे हैं?
गलत देना चाह रहे हैं और यही गलती कर ली है। 22 जमादिल उखरा को हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। दुरुस्त। जनाब बताइए कितने सही जवाब दिए? 2 गलतियां कर ली हैं हमारी कश्मीर की टीम ने। आखिरी इस्लामी भाई हैं साद हारिस। हजरत अली रदी अल्लाह तआला की शहादत 17 रमजान को हुई। गलत। हजरत बिलाल हबशी का नाम बिलाल बिन रबाह था। सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। सही। नमाज के अहकाम अमीर अहले सुन्नत ने तस्नीफ नहीं की। गलत। खातून जन्नत हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का लकब नहीं है। गलत। जनाब एक गलती हुई है आपसे, हजरत ईसा पर तौरात नहीं, हजरत ईसा पर इंजील नाजिल हुई है। एक गलती की है, 4 नंबर हासिल किए, मगर मुल्तान की टीम आज आगे बढ़ गई है। दोनों टीमें आगे आ जाएं, 6 नंबर के फर्क से मुल्तान वाले आगे बढ़ गए हैं। सुभान अल्लाह। अब आइए जनाब नाजरीन, आपकी कुरानदाजी भी होगी, आपने जो जवाबात दिए हैं, और हाजरीन की कुरानदाजी भी होगी, और फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कल मुकाबला किसका किसके दरमियान है। मगर इससे पहले जरा नाजरीन की राय बताइए, नाजरीन का क्या कहना था, कश्मीर या मुल्तान? नकियाल के लिए 27% वोट थे, 72% नाजरीन का कहना यह था मुल्तान। और अगर आज मुल्तान वाले पीछे रहते तो 72% वाले वाकई उनके दिल को तकलीफ पहुंचती, लेकिन मुल्तान वाले आगे बढ़ गए हैं। इससे पहले कि हम जरा बताइए कि आज किसके बारे में राय थी हमारे नाजरीन की कि सबसे बेहतरीन तालिब इल्म है? जनाब कॉन्टेस्टेंट ऑफ द डे किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं? ठीक है, चलें थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले कि हम यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी कर लेते हैं। आइए बड़े इस्लामी भाई 1392 1392 नंबर, 92 तो निस्बत वाला नंबर है, किसका है जनाब? 1392। अगर नहीं है तो दोबारा पर्ची निकाली जाएगी, आखिरी बार 1392। 1417 आ जाए भाई, माशाल्लाह। मदनी मुन्ने 1315 1315 आ जाए भाई, आ जाए, माशाल्लाह कितने खुश हैं। अरे वाह भाई वाह, खुसूसी मदनी मुन्ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, ठीक है? क्या नाम है आपका? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खुश हैं, देखें माशाल्लाह। चलिए ये आपका तोहफा है, ठीक है, चलिए माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आइए देखते हैं कि नाजरीन की कुरानदाजी भी देखते हैं और नाजरीन की राय क्या है। 6 तलबा में से किसको फैजान अबू हुरैरा दिया जाए? सबसे ज्यादा जो वोट्स मिले हैं साद हारिस, नाजरीन में साद हारिस को सबसे ज्यादा मुल्तान के इस्लामी भाई को वोट दिए हैं। फैजान अबू हुरैरा दीजिए जनाब, माशाल्लाह बड़े काबिल इस्लामी भाई हैं और दौरे हदीस के तालिब इल्म भी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, मजीद बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। और अब बारी है नाजरीन की कुरानदाजी की। सही जवाब आप में से किसने दिया और फिर वो सवाल क्या था वो भी मैं दोहराऊंगा, जवाब भी दोहराऊंगा। पहले देखते हैं इनाम किसको जा रहा है। चले जनाब, कुरानदाजी हो रही है। फर्स्ट पोजीशन ली है शेख सिकंदर अली ने, बाकी 4 आईडीज हैं। आप इसकी पिक्चर ले लीजिए, देखें आपकी आईडी तो ये नहीं, और अगर आपकी आईडी है तो राब्ता कीजिए हमसे, हमारी मजलिस भी राब्ता करेगी और आपके एड्रेस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको ये तहाइफ पहुंचाए जाएंगे। तो उम्मीद है बदरी चल के नाजरीन आपको सिलसिला पसंद आया होगा। चलते हैं, कल मुकाबला किसका किसके दरमियान है। देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। कल एक नहीं 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। खुशदार भी है, नकियाल भी है, और तीसरी कौन सी थी? हाँ
اوکاڑا، پنجاب، بلوچستان اور کشمیر. زبردست مقابلہ ہوگا. 3 صوبوں کے درمیان ٹیمیں ہیں اور اب دیکھنا یہ کہ تینوں میں سے ایک آگے جائے گی انشاءاللہ. باقی ٹیمیں 7 پہنچ چکی ہے. کل 8ویں ٹیم کی تلاش ہے. آئیے جہاں بھی موجود اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں، صلاۃ اسلام میں شامل ہو جائیں. سوال جو کیا گیا تھا اپلیکیشن پر وہ یہ تھا کہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں. صحیح جواب آپشن نمبر 2 تھا، منکر نکیر. تو امید ہے کہ آپ نے بھی جنہوں نے صحیح جواب دیا ہوگا ان کو جواب دے دیا ہوگا. ہاں وہ انعام رہ گیا تنظیمی ذمہ داری والا. چلے بھائی 6 کے 6 اسلامی بھائیوں میں کس کے پاس سب سے زیادہ بڑی تنظیمی ذمہ داری ہے بتائیں بھائی. جی رکن کابینہ ہے. جی آپ میں سے کوئی رکن کابینہ ہے؟ چلے وہ رکن کابینہ بھائی ہمارے انشاءاللہ یہ تحفہ لے. مدنی قافلے میں سب سے زیادہ سفر کس کا ہوا ابھی تک؟ جی کتنے مدنی قافلے؟ جی 12 ماہ والا ہے کوئی نہیں؟ یہاں ٹیموں میں 12 مدنی قافلے. کسی کے 12 سے زیادہ ہیں؟ 4 سال میں کتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے. چلو استاد صاحب کتنے ہیں؟ چلے بھائی ماشاءاللہ مہران کو تحفہ. صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں. اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. نور برساتے پہاڑوں کی کتاروں کو سلام. جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000. اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام. غسل کعبہ کا بھی منظر اس قدر پرکیف ہے. غسل کعبہ کا بھی منظر اس قدر پرکیف ہے. جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام. جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. یہ تمام اسلامی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
العلم نور العلم نور گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے علم